Hello students, and we are discussing the periodic table, model periodic table, or it is called as long form of periodic table. Long form of periodic table. And in that we have discussed regarding the some of the periods, groups, their numbers, okay, and some of the groups like halogen, chalogen, noble gases, inert gases. Then actinoids, then lanthanoids, transition elements. This we have discussed. Today we are going to discuss regarding the blocks, in the periodic table. So in the last lecture only I have told you this long form of periodic table is divided into 4 blocks. First one is called as S block, then P block, D block, and F block elements, like that. So the total 118 elements are divided into 4 different blocks. The blocks are named as S block, P block, D block, and F block. Okay. So while representing the this letters S, P, D, F, always use small one. Okay. Don't use the bold letter or capital letters. Okay, you have to use the small letters to represent the groups. So we will discuss these blocks one by one. So first we will discuss regarding the S block elements. S block elements. So this S block contains total 2 groups. S block consists 2 groups, and the groups are the group first and second. The group first and second element are called S block elements. So the elements which are coming under group number 1, the elements which are coming under group number 1 and 2 are called as S block elements. Why they are called as S block elements? What is the definition of this? Okay, so we can define this S block elements as the elements in which last electron enters into S subcell of S subcell are called S block elements. S subcell are called S block elements. So those elements in which last electron enter into S subcell is called as what? S block elements. So total up to 10th standard you have studied that there are 4 cells you have studied. That is K, L, M, N. Correct? तो आपने 10th स्टैंडर्ड तक ये स्टडी किया है, K सेल, L सेल, M सेल, N सेल, K, L, M, N. अभी इस K, L, M, N में क्या रहता है? देखो, K जो सेल है उसमें एक सबसेल रहती है. K में एक सबसेल रहती है जिसको हम 1s के नाम से जानते हैं. तो इसको हम सबसेल, ये मेन सेल है, उसकी वो सबसेल होगी. L सेल में टोटल 2 सबसेल रहते हैं, एक को 2s नाम दिया गया है, दूसरे को 2p
यम में टोटल 3 सेल आते हैं, सब सेल आते हैं। इसको एक 3s, दूसरी जो है वो 3p और तीसरी जो है वो 3d कर दिया। ओके, उसके बाद में यन में क्या आता है? यन में 4s, 4p, 4d और 4f आता है। ओके, ओ में क्या आता है? 5s, 5p, 5d, 5f आता है। ओके, 5f। तो ये क्या है आपके? These are your main cells, A, N, M, N, O, और उस मेन सेल में आने वाली सब सेल। ओके, अगर आपका कोई भी एक एलिमेंट में लास्ट इलेक्ट्रॉन जो है, फॉर एग्जांपल समझो आपने हाइड्रोजन ले लिया, इसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है। ओके, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फर्मेशन कैसे लिख देते? 1 करके लिखते हैं, बराबर है? 1 करके लिखते हैं। या फिर आप हेलियम लिखते टाइम क्या लिख देते? आप 2 करके लिखते हैं। ओके, या फिर आपने फ्लोरीन जब भी आप लिखते थे तो 2, 8, 7 करके लिखते हैं। या फिर सोडियम को आपने ऐसा लिखा, यानी 2, 8, 1 करके। ओके, तो ये दो क्या है? 2 इलेक्ट्रॉन K में, 8 किधर गए आपके? L में। ओके, और यम में कितना है? 1 इलेक्ट्रॉन है। इधर भी कैसा है? ऐसा ही है, K, L, M। ओके, इधर क्या है? K है, उधर टोटली K है। तो ये हम क्या करते थे? 10th स्टैंडर्ड तक लिखते थे, बराबर? तो 10th स्टैंडर्ड तक जो लिख रहे हैं वही चीज कर रहे हैं हम लोग। इधर भी आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? यम में जा रहा है। ओके, वो मैं गलत नहीं बोल रहा हूं, यम में जा रहा है, वो भी करेक्ट है। तो इधर भी हमारा क्या है? यम में आ रहा है। अगर ये जो लास्ट इलेक्ट्रॉन है ये यम सेल के, इस यम सेल के यस में जाता है तो उसको यस ब्लॉक एलिमेंट बोलेंगे। अगर आपका लास्ट इलेक्ट्रॉन, जैसे कि आपने इधर क्लोरीन का लिखा है, क्लोरीन का लास्ट इलेक्ट्रॉन यम में जा रहा है, इधर यम में आ रहा है। ओके, लेकिन वो किधर जा रहा है? P में जा रहा है। तो इसको हम क्या बोलेंगे कि यम सेल के P सब सेल में इलेक्ट्रॉन, लास्ट इलेक्ट्रॉन एंटर हो रहा है। ठीक है, तो अगर आपका यस ब्लॉक एलिमेंट आप किसको बोलोगे? ग्रुप 1 और ग्रुप 2 एलिमेंट्स को बोलोगे, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 के एलिमेंट्स को बोलोगे। तो उधर क्या है? देखो, ग्रुप फर्स्ट और ग्रुप 2 का अगर हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख के देते हैं, फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये 3 लेता हूं। ठीक है, तो इसका एटॉमिक नंबर है 3, इसका 11 है, इसका 19 है। तो हमें बताइए 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2। ओके, उसके बाद में ये क्या होता है? 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, sorry 3p2, 3p6, 4s1 होता है। ओके, तो 19 टोटल कितने? 19। तो इधर क्या लिख रहे हैं लोग? लिथियम के बारे में 3 इलेक्ट्रॉन, लेकिन लास्ट इलेक्ट्रॉन किधर जा रहा है? यस में जा रहा है। ओके, इन केस ऑफ लिथियम द लास्ट इलेक्ट्रॉन enter into yes, in case of sodium last electron enter into yes, in case of potassium last electron enter into yes only. If you write the second group elements, that is beryllium, magnesium or calcium, okay, here we discuss these things. So it has 4, 12 and 20. Now we can write 1s2, 2s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3p6, 4s2. Now observe for this group 1 and group 2. What we observe? Last electron. In case of lithium, third electron enter into S.
In case of sodium, 11th electron enters into S. In case of potassium, the 19th electron enters into S. In case of beryllium, 4th electron enters into S. In case of magnesium, 12th electron enters into S. And in case of calcium, 20th electron enters into S. So the last electron here in all these cases, group first and group second, it is enters into S subcell of main cell. S subcell of main cell. Now this is your K, this is your M. This is your K, this is your L. This is this is your L. This is your M. This is your K, L. This is what? M. Okay, this is what? M. Then this is what? This is K, L. K, L, M. K, L, M, L. Okay, so this is your correspondence with L. So whenever lost electron of an element enters into the S subcell of main cell, then those elements are called as S block elements. S block elements. Now this S block consists only two groups, group number 1 and group number 2. So group number 1, already I have told you that group number 1 elements are called as alkali metals. What they are called as? Alkali metals. And these are called as alkaline earth metals. They are called as alkaline earth metals. So group number 1 is called as alkali metal. Group number 2 is called as alkaline earth metals. Okay. So whenever we are saying that alkali metals, okay, except H, हाइड्रोजन को इधर छोड़ने का और इधर क्या करेंगे एक्सेप्ट He, क्योंकि इसमें भी लास्ट इलेक्ट्रॉन गैस में जाता है. ठीक है, तो इनको छोड़ के हाइड्रोजन के लिए इनको छोड़ के जितने भी ग्रुप नंबर 1 नंबर 2 में एलिमेंट्स आ रहे हैं तो क्या बोलेंगे हम लोग? एक को बोलेंगे अल्कली मेटल्स, दूसरे को बोलेंगे अल्कलाइन अर्थ मेटल्स. ओके, अगर हम इस ग्रुप का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन लिखना चाहते हैं, ओके, जनरल क्या करेंगे? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन अगर हम लिखना चाहते हैं तो क्या है? जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन इज NS1 और 2. Okay, general electronic configuration is NS1 or 2. N is nothing but your principal quantum number or it is a period number. It is what? A period number. Now we will discuss some properties of this S block elements. Okay, properties of S block elements. So S block elements, they are soft metals. The first important thing is they are soft metals. Soft है, smooth, sorry, soft है, smoothness, soft metals. Okay, तो easily आप इस metals को, S block में आने वाले metals को easily आप क्या कर सकते हो? नाइफ की मदद से कट कर सकते हो या फिर इजीली कट किए जा सकते हैं, ऐसे मेटल है. तो ये क्या है? सॉफ्ट मेटल्स. ओके, दे हैविंग लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग. तो अभी ये सॉफ्ट है, क्या हो जाएंगे? जल्दी मेल्ट भी हो जाएंगे और बॉइल भी हो जाएंगे. ठीक है. सेकेंड प्रॉपर्टी, they have low ionization
ionization enthalpy. So here we will discuss regarding this ionization enthalpy. What it means? Sodium gives Na plus 1. ये हमने क्या किया है 10th स्टैंडर्ड तक स्टडी किया है। ये सोडियम क्या करता है, एक इलेक्ट्रॉन देके Na+ बनाता है, या सोडियम gives one electron and forms a cation, forms a positive ion cation. Now the energy, sodium is not just, he is not giving the electron, like if you are not giving any type of energy to sodium and he is losing its electron, this is not like that. Okay, this is not like that. So without energy, this is not going to give the electron. So the energy required, what it is? Ionization enthalpy. Okay, ionization enthalpy. What is ionization enthalpy? Ionization enthalpy, or in some book it is called as ionization energy. In some book it is also called as ionization potential. So energy required to remove, okay, energy required to remove an electron from isolated gaseous state atom. Gaseous state atom is called as ionization enthalpy, ionization energy. क्या है देखो ionization enthalpy, ionization energy, ionization potential किसको बोला जाता है? ओके, तो ये क्या है? एनर्जी है जिसकी मदद से, ओके, जिसकी मदद से क्या करने वाले हैं? एक गैसियस स्टेट में रहने वाले एटम से हम क्या करने वाले हैं? एक इलेक्ट्रॉन निकालने वाले हैं। अभी एक गैसियस स्टेट एटम से एक इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जितनी भी एनर्जी लगेगी, उस एनर्जी को क्या बोलते हैं? आयोनाइजेशन एंथैल्पी बोलते हैं, या फिर आयोनाइजेशन एनर्जी बोला जाता है। सो the energy required to remove an electron from isolated gaseous state atom is called as ionization enthalpy, ionization energy. And in case of S block element, this ionization enthalpy, ionization energy is low. What it suggests? It suggests that इनकी आयोनाइजेशन एंथैल्पी लो है। इसका मतलब क्या है कि वो कम एनर्जी में अपना इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं। अब एनर्जी कम है, कम प्रोवाइडेड एनर्जी कम है, तो भी वो क्या करेंगे? आपके जो कम है मतलब जितना उसको चाहिए उतनी एनर्जी मिल गई तो वो लूज करेगा, लेकिन जो चाहिए एनर्जी वो क्या है? वो कम चाहिए। ठीक है, नाउ दे हैव लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी एंड दे सजेस्ट दैट दे are most electropositive elements in periodic table. So they are most electropositive. कैसे एलिमेंट है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट। इसका मतलब क्या हो रहा है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट है मतलब वो सभी के सभी क्या करने वाले हैं? पॉजिटिवली चार्ज आयन बनाने वाले हैं। कोई भी एलिमेंट जो S ब्लॉक के अंदर आता है, जो भी ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 के अंदर आता है, वो नेगेटिव आयन नहीं बनाएगा। ध्यान रखो, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव बोला है। ओके, अभी मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी है। इससे क्या बता सकते हो आप कि दे आर वेरी रिएक्टिव मेटल्स। ये क्या है? कैसे मेटल्स है? रिएक्टिव मेटल्स है, वेरी रिएक्टिव मेटल्स है, मतलब बहुत जल्दी रिएक्ट हो जाते हैं। सोडियम को आप ऐसे एयर में रख दोगे तो जल जाएगा। ओके, क्या होगा? ओपन एयर में आपने रख दिया कि वो इमीडिएटली क्या होता है? जलता है या फिर बर्न हो जाता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट हो जाता है। तो रिएक्टिविटी जो है वो वेरी हाई है। ओके, रिएक्टिविटी क्या है? हाई है। देखो अभी आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, इलेक्ट्रोपॉजिटिव कैरेक्टर है, मतलब कैटायन नहीं बनाने वाले, तो इससे मतलब क्या बता सकते हैं आप लोग? ओके, द मेटल्स आर
metals are most electropositive, they are in low ionization enthalpy, and then what they form, कौन से टाइप के कंपाउंड बनाते हैं? They forms ionic compounds. Ionic compounds. What is mean by ionic compounds? Ionic compounds means you know that is NaCl. Okay, एक उसका एक रद्द लेके ग्रुप फर्स्ट से, तो अगर आप इसको क्या करोगे, पानी में डाल दोगे, एक्वियस मतलब वाटर में अगर इसको डालते हो NaCl को, तो क्या करता है, ये Na सेपरेट हो जाता है और इसके साथ क्या होता है, Cl- भी सेपरेट हो जाता है। तो ये दो आयंस कंबाइन होकर क्या बना रहे हैं, एक सब्सटेंस बना रहे हैं, एक कंपाउंड बना रहे हैं, और उसको हम क्या बोलेंगे, आयोनिक कंपाउंड। व्हाई? बिकॉज the compounds are formed due to electrostatic force of attraction between two oppositely charged particles, and that compounds are called as ionic compound. So almost all elements they forms what, ionic compounds. Okay, sixth क्या property बताएंगे? Okay, sixth property हम बताएंगे कि they gives characteristics characteristic color to flame. So whenever these metals are burnt in the flame, okay, अगर आप इस मेटल को लेते हो, मेटल का एक छोटा सा पीस लेते हो और उसको आप क्या करोगे, फ्लेम में पकड़ोगे, उसको आप बर्नर के ऊपर ऐसे पकड़ोगे, तो उस बर्नर के फ्लेम को क्या देते हैं, ये कलर देते हैं, कैरेक्टरिस्टिक कलर देते हैं। मतलब हर एक कैरेक्टरिस्टिक मतलब क्या है, हर एक एलिमेंट का एक अलग कलर आपको क्या मिलेगा, अलग अलग कलर देंगे। ओके, नेक्स्ट प्रॉपर्टी, सेवन प्रॉपर्टी हम बताते हैं इसकी, मैं इधर लिखता हूं सेवन, दे आर स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट, अभी रिड्यूसिंग एजेंट क्या चीज है, हम रेडॉक्स रिएक्शन जब स्टडी करेंगे तब देखेंगे। आप इस लेक्चर के लिए समझ लो कि वो जो इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं उनको, या फिर जो इलेक्ट्रॉन देते हैं उसको हम क्या बोलते हैं, रिड्यूसिंग एजेंट बोलते हैं। ओके, तो elements or compounds which are capable to give electron, they are called as a reducing agent. Okay, और ये strong reducing agent है, क्यों, low ionization enthalpy, easily electron देते हैं, तो क्या हो जाएंगे, strong reducing agent हो जाएंगे। और लास्ट प्रॉपर्टी हम बताते हैं, they are good conductor of heat and electricity। ये क्या है, बहुत अच्छे कंडक्टर है, बहुत इजीली वो क्या करते हैं, हीट को कैरी कर सकते हैं या फिर इलेक्ट्रिक चार्ज को कैरी कर सकते हैं, सो दे आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। सो दीज आर द प्रॉपर्टीज ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट्स। तो एस ब्लॉक एलिमेंट की प्रॉपर्टीज क्या है, देखो, वो बहुत सॉफ्ट मेटल है, सभी के सभी क्या है, सॉफ्ट मेटल है, ठीक है, सॉफ्ट मेटल है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, सॉफ्ट मेटल होने की वजह से क्या है, लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट, लो आयोनाइजेशन एंथैल्पी, इस सभी की क्या है, आयोनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू कम है, मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, पीरियोडिक टेबल में से जितने भी इलेक्ट्रोपॉजिटिव एलिमेंट्स है इसमें सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ये दिखा रहे हैं, तो मोस्ट इलेक्ट्रोपॉजिटिव है, मोस्ट रिएक्टिव है, वेरी रिएक्टिव है, इजीली रिएक्ट होते हैं, ओके, नॉर्मल कंडीशन में भी रिएक्ट होते हैं, तो वेरी रिएक्टिव बोला गया है, सबसे ज्यादा रिएक्टिव है, आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, फ्लेम में पकड़ते हो तो कलर देते हैं, ओके, अलग अलग कलर देते हैं, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, इजीली इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो क्या है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, गुड कंडक्टर है, गुड क्या है, कंडक्टर है, किसके, हीट और इलेक्ट्रिसिटी के। सो दीज आर सम व्हाट प्रॉपर्टीज ऑफ
S block element. So the elements in which last electron enter into S is called as S block elements.